Very good afternoon, beta. Am I clearly audible, children? Okay. बेटा वॉइस क्लियर कैसे आता है ब्लूटूथ लगाने से या बिना ब्लूटूथ के क्लियर आता है? आपने कल थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो आप बताओ वैसे। ब्लूटूथ के साथ क्लियर है क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अपने कल के लास्ट टॉपिक बताओ तो बेटा जरा। Okay, what was our last topic, children? Yesterday, what we discussed? Decomposition. Okay, decomposition. Okay, so how many reactions are over? Yes, beta, how many reactions are over? हाँ हाँ। ओके ओके। और थर्मल के कितने एग्जाम्पल्स हुए हैं? सिर्फ एक ही का हुआ है? ओनली दिस मच इज ओवर आई थिंक। ओके ओके। So you know about this reaction very well now, children. When ferrous sulfate decomposes, it gives out ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide, right? Apart from this, you have more three examples of thermal decomposition. So what are those? Listen carefully. When
लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस. अब देखो यहाँ पे बात क्या होती है. ये जो सब्सटेंसेस है लाइक फेरस सल्फेट, lead nitrate. Okay, you have to remember formula of the substance. अब ये इतना इजी है कि अगर आपके वैलेंसीज लर्न है तो आप इजीली याद कर सकते हो, बट अगर आपके वैलेंसीज लर्न नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा. सो यू शुड नो द वैलेंसी ऑफ लेड. लेड की वैलेंसी होती है 2. देन नाइट्रेट. नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1. लेट्स क्रॉस द वैलेंसी. सो लेड यू हैव टू राइट वन टाइम, दैट इज Pb1 एंड NO3. अब इसको ब्रैकेट लगेगा. क्यों ब्रैकेट लगेगा? बिकॉज इफ यू विल नॉट पुट ब्रैकेट, सी, देन व्हाट विल ऑब्टेन NO3 ट्वाइस. तो ये क्या हो गया 32. ये 32 दिख रहा है कि ऑक्सीजन 32 है. ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए. को नाइट्रेट 2 टाइम्स चाहिए, सो वी विल पुट ब्रैकेट. इस तरीके से लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनता है. ठीक है. तो इसके लिए आपको पहले वैलेंसीज लर्न करना बहुत जरूरी है. एंड फॉर दैट यू हैव टू रेफर 9th standard NCERT book, table number 3.6. If your basic concepts are not clear regarding the symbol of the substance and the valency, so you can refer it. Okay, 3.6, table number for 9th standard NCERT book, you have to refer now. So similarly, as like a ferrous sulfate, when lead nitrate undergoes thermal decomposition, same, हाँ, जैसे हमने कल किया था, we have taken one test tube. In that we have taken ferrous sulfate. Today we will take lead nitrate crystals. We will heat them slowly with the help of flame of the Bunsen burner. What will you observe, children, when the lead nitrate undergoes thermal decomposition? You will observe that the brown fumes are coming out from the test tube. Yesterday we discussed about these two gases. I told you these two gases are colorless. They doesn't have any color. But when lead nitrate undergoes decomposition, you will observe that the brown color of fumes comes out from the test tube. So what these brown fumes are? These fumes are of nitrogen dioxide. यहाँ पे जो fumes निकलते हैं वो किसके हैं? Nitrogen dioxide के. And what remains behind here in the test tube? Here in the test tube, the substance remains behind. It's called lead oxide. यहाँ पे जो सब्सटेंस बच जाएगा वो कौन होगा? लेड ऑक्साइड. Along with these gases evolve this one and oxygen. Okay, these two gases are evolved in this process. Lead nitrate is produced, nitrogen dioxide is evolved along with oxygen. Now student, in this reaction you will observe the color changes also. The first color change is lead nitrate is colorless as like our common salt. कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं ना डेली हमारे फूड में, उसका कैसे कलर होता है? व्हाइट क्रिस्टल्स होती है. और जब भी क्रिस्टल्स को हम वाटर में डालते हैं इट फॉर्म्स कलरलेस सॉल्यूशन. Similarly, lead nitrate also appears like a common salt. When it undergoes thermal decomposition, color changes to orange reddish. Its color changes to orange red because of formation of lead oxide. वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? लेड ऑक्साइड बन रहा है. ठीक है. सो कलर ऑफ लेड ऑक्साइड इज ऑरेंज रेड. दिस यू हैव टू रिमेम्बर. इसको याद रखने के लिए ऐसा कोई हिंट नहीं है. ठीक है. यू हैव टू रिमेम्बर इट. कलर ऑफ लेड नाइट्रेट इज कलरलेस. कलर ऑफ लेड ऑक्साइड इज orange. Along with the fumes evolved which are brown in a color, and these brown color fumes are of nitrogen dioxide. This is also one more example of thermal decomposition you have in your syllabus.
अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको एक बोर्ड का क्वेश्चन बताती हूँ जो आई थिंक 2018 या 2019 में पूछा गया है। इस टाइप का एक्सपेरिमेंट वहां पे दिया था, सेम डायग्राम वहां पे थी। यहाँ पे लिखा था ब्राउन फ्यूम्स और लिखा था वाई, ब्राउन फ्यूम्स और लिखा था वाई, और यहाँ पर था एक सब्सटेंस, एक सब्सटेंस। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज identify substance X and substance Y. Identify substance X and substance Y. कौन बताएगा मुझे what is X and what is Y? yes. बेटा वापस बोलो आप। हम्म। बेटा आप जो बोल रहे हो ना, आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप वापस बोल सकते हो। भाग्यश्री बेटा चैट बॉक्स में डालो तो जरा, बिकॉज आपका वॉइस है ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ड्रॉप योर आंसर इन द। फेरस सल्फेट कैसे होगा? क्या लिखा है? ब्राउन फ्यूम्स। जब फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है तो कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है। फिर तब कलरलेस गैस प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स लिखा है, तो ब्राउन फ्यूम्स कब निकलते हैं? जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है। हाँ, यस वेरी गुड। तो एक्स जो आपको पूछा गया है वो है आपका लेड नाइट्रेट, और वाई जो आपको पूछा गया है वो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाई क्या है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक्स क्या है? लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बोलो नहीं। हम्म। हम्म। हाँ, ये लेड ऑक्साइड ही होगा, बट डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि जिससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई रेसिड्यू, आइडेंटिफाई रेसिड्यू, ठीक है, रेसिड्यू, अगर रेसिड्यू वापस लिखती हूँ स्पेलिंग, ये देखो, आइडेंटिफाई रेसिड्यू, ये दो वर्ड याद रखना। प्रिकर्सर मतलब जिससे स्टार्ट हो रहा है, रेसिड्यू मतलब जो लेफ्ट बिहाइंड है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रिकर्सर इज आस्क्ड, नोट डाउन lead nitrate. If residue means the substance which remains behind, which left after the reaction, so that is lead oxide. It depends on the reaction. Simply, अगर आपको पूछा जाए कि आइडेंटिफाई, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ना प्रिकर्सर दिया है ना रेसिड्यू ये वर्ड दिया है, so you have to identify the substance undergoes decomposition, so that is your lead nitrate. Is this clear, Anay? Right. So if you want to take a screenshot of it, you can take, because we will not get this word later on. हाँ भाविक बोलो। हाँ, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है बेटा भाविक? द सब्सटेंस दैट रिमेन्स बिहाइंड, मतलब जब इसका डिकम्पोजिशन चल रहा है, ये सब्सटेंस स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? इनटू लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2। मतलब बाद में ये बचेगा ही नहीं, इसका पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो पीछे क्या छूट जाएगा? लेड ऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में पीछे छूट जाएगा, और ये दोनों गैसेस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाएंगे। तो पीछे क्या छूट गया? लेड ऑक्साइड। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? जो पीछे छूट गया, द सब्सटेंस दैट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन और विच लेफ्ट बिहाइंड, सो दैट इज द रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का क्या होगा आपका? लेड ऑक्साइड। क्लियर है भाविक?
Okay. Apart from this second one, you have third more reaction. According to your NCRT book, you have three, and according to S-Chan, you have four reactions. Okay. Third one is calcium carbonate. Okay. It decomposes thermally to give calcium oxide and carbon dioxide. Look at this equation. Calcium carbonate. Okay. It decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. This is a very simple reaction. Now here we have to learn properties of this gas also, properties of those gases also. Okay, because yesterday we learned properties for these two gases. Hmm? Now you have to write this one, the second one. This is the first, this is the second, this is the third. So at the very first, you note down this second one. And now we are going to write properties of these two gases. NO2 and O2. Okay. Properties. Properties of NO2. Any guesses? As like this, SO2, SO3, इसके जैसे कोई गेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? यस, गलत भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एटलीस्ट यू ट्राई। हम्म, इस भाभी ट्राई करोगे? प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं? ओके चलो, पे योर अटेंशन, लुक एट दिस एलिमेंट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। सिमिलरली सल्फर, ये भी एक नॉन मेटल ही है। ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड। जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे तो इनके जो प्रॉपर्टी होंगे वही इनकी भी प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैव ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैव सेम प्रॉपर्टी। बस कुछ कुछ फर्क है। अब डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड यू, इट इवॉल्व्स विद अ ब्राउन कलर फ्यूम। इसके ब्राउन फ्यूम्स होती है, सो कलर इज ब्राउन। As like these two gases, this gas is also having a pungent smell. This is also having a pungent smell. मतलब ये भी अगर हमारे नोज में जाता है तो हमको नोज के अंदर इचिंग होती है, इरिटेशन होता है। सेम यस्टरडे के जैसा ही SO2 SO3 के जो प्रॉपर्टीज थे, सेम प्रॉपर्टी। थर्ड वन, it is also acidic in nature. Nitrogen dioxide is also acidic in nature. Now why acidic? Pay your attention. Because when it mix with water, it forms its corresponding acid, that is nitric acid. इनसे क्या बनते थे? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड। ओके, आई एम राइटिंग दिस स्पेलिंग, नाइट्रिक एसिड। Note down the properties of nitrogen dioxide. हाँ बोलो। Yes, this one. Are you asking about? नो ना बेटा, ये कैसे एंटासिड होगा? देखो, ये तो खुद एक एसिड है। इसका नाम देखो, ये खुद एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। जो एक खुद एसिड है उसको हम एज अ एंटासिड कैसे यूज कर सकते हैं? आ रहा है समझ में? हाँ वो बेटा, वो मेटल की ऑक्साइड्स होते हैं, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना, उनके सॉल्यूशंस हम एज अ एंटासिड यूज कर सकते हैं, नॉन मेटल के नहीं, नॉन मेटल के नहीं। सो कम ऑन, नोट इट डाउन।
जैसे आपका हो जाता है आप मुझे हिंट दो बेटा। फिनिश। गुड। And you have to learn it also. Huh? Don't simply write and keep it aside. You have to read daily. You have to learn what is taught in the class, and you have to revise it daily. Okay. So according to your NCRT, all the reactions are over for thermal decomposition. But as per the content of S-Shan, one more reaction is there, the fourth one, for potassium chlorate. देखो इसका नाम क्या है? Its name is potassium chlorate. क्लोरेट है ये ClO3 जब आ जाता है ना तो ये क्लोरेट बन जाता है। अब क्या होगा इसमें देखो, ये पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, इसको स्प्लिट करना है, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। टेल मी, इज दिस रिएक्शन बैलेंस? इज इट बैलेंस? नो। व्हाट वी हैव टू डू? व्हाट वी हैव टू डू? लिसन, ऑक्सीजन 3, फिर ऑक्सीजन 2। देखो मैंने बताया था आपको कि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन अगर आती है कि एक ऑड है एक इवन है, इनको क्रॉस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये 3 है, इस 3 को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो 2 है उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाले ऑक्सीजन को। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ टेल मी, इज द ऑक्सीजन बैलेंस्ड? Now the oxygen is balanced. What about chlorine and potassium? Are they balanced? Potassium. So what we have to do here? Yes, very good. Multiply potassium chloride by 2. ये हो गया balance. So this is also one of the example of thermal decomposition. So total हमारे कितने equations है? 1, 2, 3, 4 equations है. These 4 equations are all for थर्मल डिकम्पोजिशन। ये चारों के चारों थर्मल के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिकम्पोजिशन खत्म होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है आपका फोटो डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप इज फोटो डिकम्पोजिशन। देखो बेटा, ये चारों के चारों जो इक्वेशंस थे ना, इसमें जो भी ब्रेकडाउन हुआ सब्सटेंस का, जो भी स्प्लिटिंग हुआ, दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ हीट। ओके, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की वजह से हुआ। अब कुछ डिकम्पोजिशन ऐसे हैं दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लाइट, लाइट की वजह से होते हैं। अब ये लाइट जरूरी नहीं है कि नेचुरली ही होना चाहिए, मतलब सनलाइट ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। इवन द फोटो डिकम्पोजिशन हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल लाइट टू, जैसे कि हमारी ट्यूब लाइट होती है, उसके भी प्रेजेंस में ये होता है। तो उसके दो एग्जाम्पल्स है। द वेरी फर्स्ट, decomposition of silver chloride and decomposition of silver bromide। अब देखो, थर्मल के लिए हम लोग क्या नोट करते थे? हम हीट नोट करते थे। नाउ दिस इज द फोटो डिकम्पोजिशन। So photo decomposition takes place in presence of light. So here we will write light. Okay. So what is this, children? Writing the light above the arrow indicate the condition required.
ये लाइट लिखने से हमको क्या पता चलता है कि द रिएक्शन इज हैपनिंग ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये स्ट्रिक्ट कंडीशन रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगी। अब देखो ये बहुत सिंपल है, इसको ब्रेक डाउन करना कोई डिफिकल्ट है क्या? इसमें दो ही चीजें हैं, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, क्या बनेगा बताइए? व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज ब्रेक डाउन, व्हाट विल प्रोड्यूस? सिंपल है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सिल्वर जो है आपका सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन आपका सेपरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि the Cl, single Cl will never exist in the atmosphere. It never exists in elemental form. It always exists in the gaseous form. Okay, it always exists in the gaseous form. So we have to multiply it by 2. Wait a minute. Huh? Okay, is the board clear now? हाँ, right. So why we have written 2 over there? Because bromine, chlorine, iodine, these elements never exist in the atomic form. They exist in the molecule. Molecule के form में exist करते हैं, इसलिए हमने twice लगाया. Now tell me, is the reaction balanced? We have to. It is not balanced. We have to balance. So what we have to do? Chlorine and bromine both are 2 in the product side. So let's multiply. Only one reactant is there. So it is not too much difficult to balance it. Just multiply simply by 2. Here also 2. So Ag now became 2 in the reactant side, while in the product side only one silver is there. Multiply by 2. Now it is balanced. Understood? See, children, the main thing is okay, okay. The main thing is what? Here we are not learning the balancing equation, okay? Balancing नहीं पढ़ रहे हैं हम. We are learning a decomposition. So try to focus on the decomposition concept. See, single substance get breaks into two products, okay, with the help of light. Light के through हो रहा है, ठीक है? That's why we have written light. और एक चीज याद रखनी है बेटा कि the reaction not only happens in the sunlight but also it happens with the artificial light too. Okay, ये भी याद रखना, it happens with the artificial light too. So note down. Done. Shall we move forward? हाँ, लिख लो बेटा, भाभी नोट कर लो. वेरी गुड, वेरी गुड. सो बताइए अब तक हमने कितने इक्वेशंस पढ़े? हाउ मेनी रिएक्शंस वी लर्न टिल नाउ? Thermal decomposition 4 and photo decomposition 2. So total how many reactions? 6 reactions we learn. You have to learn the reaction very carefully. You have to study, you have to remember the name of the reactant product, their formulas, and you also have to remember the color, okay, color of the substances, क्योंकि कलर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. If you refer the previous years exam paper provided by CBSE, or even if you go through
The sample paper provided by CBSE for academic year 2021, you will get lots of question depend on the color of the substances, especially in the first 20 questions जहाँ पे multiple choice type of questions होती है, या तो फिर केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन होता है, या फिर वन वर्ड आंसर टाइप. So there you will get this kind of question based on the color of the substances. Okay. Now we have the third type of decomposition, that is electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस, और जिसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition. I think the screen is little bit blurred. It will get clear shortly. Okay. Now see the spellings. Electrolysis or electrolytic decomposition. Means what? The decomposition takes place because of the electricity. Decomposition takes place because of electricity. फिर ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक apparatus है. So we will learn the experiment. We have one activity for electrolysis of water. वो भी हम पढ़ेंगे. इसके लिए देखो, आपको कुछ मटेरियल लगेंगे. फॉर दिस एक्टिविटी द मटेरियल रिक्वायर्ड आर 6 volt battery. Okay, 6 volt battery, one plastic beaker having a 2 holes from its bottom. ऐसा एक मग, प्लास्टिक का मग या तो फिर प्लास्टिक का आपको बीकर लगेगा, जिसको क्या करने हैं, आपको उसको 2 होल बनाने हैं, लाइक दिस. क्यों बनाने हैं ये होल? बिकॉज वी हैव टू इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स. यहाँ से हमको इलेक्ट्रोड्स डालने हैं इसके. ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कभी इलेक्ट्रोलाइटिक apparatus. आपने शायद 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा इन चैप्टर, आई थिंक एसिड बेसिस ऐसा कुछ तो भी चैप्टर था, वहां पे आपको शायद ये आ चुका होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ऐसे हमारे इलेक्ट्रोड्स. अब इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना, उनको एक वायर होती है, ऐसी 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 ऐसी, लाइक दिस. ये हमको कनेक्ट करनी है 6 volt बैटरी को. 6 volt बैटरी. Now you know very well the battery has two terminals, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. ये बेसिक चीजें हैं. पॉजिटिव से जो वायर निकलती है, जो इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड है, वो होता है आपका एनोड. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड. So what is charge on the anode, children? What is charge on the anode? Yes. You have to remember it. Huh? So positive. Negative से connected है, that is your cathode. So what is charge on the cathode? Negative. अब ठीक है, अब हमने सेटअप तो बना लिया, बट हमारा सेटअप प्रॉपर है या नहीं, ये सच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं. फॉर दैट वी हैव टू अटैच वन की एंड बल्ब देयर. जब बल्ब ग्लो होगा तो हम कंफर्म करेंगे कि हमारा apparatus जो है वो सही सही बना है. ठीक है. सो हम यहाँ पे की लगाएंगे. की मतलब क्या होता है, एक ऐसे बॉक्स होता है जिसके अंदर होल होता है. जैसे हम यहाँ पे मेटल की प्रेस करते हैं तो सर्किट कनेक्ट हो जाता है. ठीक है. और फिर यहाँ पे होता है एक बल्ब. यहाँ पे एक बल्ब है. Once we press the key, you will observe that the bulb is glowing, so we can confirm that the apparatus is properly set. अब इस मग के अंदर क्या करना है? Here you have to add distilled water. You have to add distilled water.
डिस्टिल्ड वाटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारे बच्चों को आया होगा, जैसे कि आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में कभी पढ़ा होगा, डिस्टिल्ड वाटर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पता है आपको ये? कितने बच्चों को पता है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? हाउ मेनी ऑफ यू नोज? So I'm not getting response. Am I audible? हाँ, तो आप मुझे बताइए, क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं? टेल मी। नहीं करता है। अब ठीक है। तो डिस्टिल वाटर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे ले रहे हैं? क्योंकि जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी, तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। तो ये सही है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई इसको हमको क्या बनाना है? एसिडिफाइड। Acidified. Okay, what we have to do? We have to make the distilled water acidified. Acidified. How to make it acidified? By adding few drop of any acid to it. हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होती है, HCl है, H2SO4 होता है लेबोरेटरी में, HNO3 होता है, फिनाइल नहीं रे बाबा, नाइट्रिक एसिड, फिनाइल नहीं है। फिनाइल में दूसरे एसिड्स होते हैं, हमको प्योर एसिड यूज करना है यहाँ, ठीक है? तो एसिड के, कोई भी एसिड के एक या दो ड्रॉप आप इसमें ऐड कर दो, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों होता है कि क्यों एसिड डालने से वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करता है? आप बताओ, अभी बता दूं कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे? 10th में ही हो अभी आप, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बताइए। आप बोलोगे कि अभी बता दो, तो अभी बता देती हूँ। आप बोलोगे सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में बताऊंगी। चल मी। हाँ, वी हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है, अभी बता देती हूँ। वी हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड टू द वाटर, सो वाटर विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? क्यों? अभी देखिए, ये है एसिड, समझो हमने HCl यूज किया है और हम इसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं। पता है क्या होता है? द रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ लॉट्स ऑफ एनर्जी। ये इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि इस एनर्जी की वजह से ये सब्सटेंसेस आयंस में बन जाते हैं, आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे आयंस? देखिए, HCl का बन जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस, H2O का बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट रिफ्लेक्शन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, H2O का बन जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस। ऐसे आयंस बन जाते हैं। सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन है, यहाँ पे ऐसे आयंस बन जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, द वाटर स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते हैं, पर जब उसमें हम एसिड के ड्रॉप्स डालेंगे तो आयंस बन जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? तो इसीलिए हम प्योर वाटर को एसिडिफाइड बना देंगे। अब देखिए क्या होगा। When the water undergoes electrolytic decomposition, हमारा मेन सब्सटेंस क्या है? वाटर है। हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। सो एज वाटर अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस, as water undergoes electrolysis, it split out, it break out. So tell me, as water decomposes, what what are the products expected when it decomposes? What are the products expected? Tell me. देखो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना? H2 plus O2 आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। ये दोनों गैस है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो सिंगल ऑक्सीजन है, आपने यहाँ पे O2 लिखा है, क्यों लिखा? सेम रीजन, a single element of oxygen never exists in the stable form.
It immediately combines with other oxygen and forms oxygen molecule. So we have to balance it. Come on, balance the equation and tell me what are the result after balancing. Very good, very good. Hmm? Here 2H2O gives out 2H2 plus O2. देखो equation balance. 4 hydrogen, 4 hydrogen. 2 oxygen, 2 oxygen. Now the equation is balanced. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Look at this equation and tell me the conclusion. What you are getting from this equation? क्या समझ में आ रहा है आपको? Anyone? Try करो थोड़ा सा. क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? हाँ, ये तो हमारा मेन टॉपिक है कि वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट मेन थिंग क्या है यहाँ पे देखो, दो वाटर के मॉलिक्यूल है, टू वाटर मॉलिक्यूल्स. व्हेन डिकम्पोजेस, जब दो वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. समझ में आ रहा है? दो हाइड्रोजन बनते हैं और ऑक्सीजन के कितने बन रहे हैं? टेल मी. कहाँ है बेटा? मॉलिक्यूल बोल रहे हो, मॉलिक्यूल. ये देखो, ये मॉलिक्यूल होता है. H2, H2 ये एक मॉलिक्यूल है. ऐसे दो है. हाँ, इसलिए मैंने दो लिखा. ऑक्सीजन के कितने हैं? वन. प्लस वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये वाला नंबर देखना है बेटा, आगे वाला. ये दो है, ये दो है, ये दो है, ये दो है, और ये एक ही है, वन ऑक्सीजन. इससे क्या समझ में आ रहा है? द रिएक्शन प्रोड्यूसेस, ध्यान दो, अभी सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, लिसन केयरफुली. दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो. क्या रेशो होगा हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन डबल है, देखिए. हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन उसका हाफ है. सो हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द रेशो 2:1. गेटिंग इट? देखो परसेंटेज उसका, ये देखो. हाँ, रेशो देखो. दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो एक ऑक्सीजन. चलो ठीक है, आपको अगर ये नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो आप मल्टीप्लीकेशन के साथ ले लो. यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 into 2, 4 हाइड्रोजन. 4 हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज हो रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं और दो ऑक्सीजन. है ना? देखो, 2 into 2, 4 हाइड्रोजन, दो ही ऑक्सीजन. सो 4:2 मतलब ये क्या? 2:1, मतलब हाइड्रोजन डबल प्रोड्यूस होता है देन ऑक्सीजन. और ये बेटा हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं? इसके ऊपर है ना, हम ऐसे टेस्ट ट्यूब लगा देंगे, उल्टे, इन्वर्टेड. वी विल पुट टेस्ट ट्यूब हियर लाइक दिस. तो ये जो गैसेस प्रोड्यूस होंगे ना, ये इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होंगे यहाँ पर. बिकॉज द टेस्ट ट्यूब्स आर केप्ट इन्वर्टेड, so the gas produced at both the electrode will evolve and will get aggregate. hmm? तो देखो, कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन, तो इतना पूरा वाटर रहेगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर. पूरा वाटर रहेगा ऐसे, इतना सारा वाटर रहेगा, और इतना क्या रहेगा? गैस. वैसे ऑक्सीजन का इसका हाफ, मतलब ये इतना है एरिया, तो इसका हाफ लेना है, मतलब लगभग यहाँ तक. तो ऑक्सीजन इतना ही प्रोड्यूस होगा, बाकी सब टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर रहेगा. So like this. So amount of hydrogen is produced is double than the amount of oxygen produced in this process. Is the diagrammatic representation clear to you, children? Very good, very good. And got the reason that why hydrogen is produced double than the oxygen? Because, listen carefully, because when two water molecule decomposes, produces two hydrogen molecule,
and only one oxygen molecule. So anyway, the ratio of hydrogen s to oxygen produced is 2s to 1. अब क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रोजन कैथोड पे ही क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन एनोड पे ही क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? कितने बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आया या फिर मेरे बताने के बाद आया कि व्हाई ओनली हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, व्हाई ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड? So for understanding this, you have to remember the charge of both the electrode, है ना? अब पहले आप चार्ज याद कर लो क्योंकि मैं डायग्राम रफ करने वाली हूँ टू एक्सप्लेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चार्ज याद रखो, एनोड का पॉजिटिव, कैथोड का नेगेटिव. ठीक है, अब मैं डायग्राम रफ करूंगी. Now why hydrogen at cathode and why oxygen at anode? Now see, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है. ये एक वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो देखो ये कितने हाइड्रोजन बना रहा है. लुक एट दिस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैसे स्प्लिट होगा? एक हाइड्रोजन अलग, दूसरा हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, है ना? ये देखो 2H ऐसे बन गए, एक H अलग अलग हो गया, एक H अलग हो गया, एक ऑक्सीजन अलग हो गया. Now student listen carefully, the charge on this element, you have to remember it, the charge on the hydrogen is plus. You know why? Because it loses its one electron, and charge on the oxygen is 2 minus. ठीक है, charge on one hydrogen is plus 1. Similarly for another hydrogen also plus 1. Charge on one oxygen is 2 minus, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. ये देखो, ये एक हाइड्रोजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इनके ऊपर आ गया एक एक प्लस चार्ज. और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए. ऑक्सीजन एक्सेप्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनके ऊपर चार्ज आते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, सो 2 माइनस. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया. अब देखो, चार्ज ऑन द हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज नेगेटिव, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास मूव करेंगे. ओके, these elements will move towards the opposite electrode. Now tell me, what is the charge of cathode? As I told you to remember, well, it is negative. And charge on the anode is very good. So these ions will move towards opposite. So negative के पास कौन आएंगे? Tell me, opposite. हाँ, हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ जाएंगे. तो हाइड्रोजन दोनों कैथोड की तरफ आएंगे, दोनों H प्लस मिला के H2 बन जाएगा. ये ऑक्सीजन जो निगेटिव है वो पॉजिटिव के पास आएगा, ऐसा ही रहेगा. इसको और एक ऑक्सीजन चाहिए, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा और 2 H2 बनाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, तो ऐसे ये बन जाएगा O2. साथ में यहाँ पे और एक H2 बन जाएगा. दैट्स वाई 2H2 or 1O2. That's why ratio is 2s to 1. Clear? अब देखो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा हो गया होगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हो. जिनको अंडरस्टैंड हो रहा है ये कॉन्सेप्ट उनके लिए ठीक है, जिनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है उनके लिए सिंपल सी हिंट बताती हूँ, सिंपल सी हिंट, जिससे आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं. एकदम सिंपल हिंट याद रखो, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, so it will move towards negative cathode, and charge on the oxygen is negative, it will move towards positive anode. ये एक हो गया याद रखने के लिए. दूसरा एक इजी चीज आपको बताओ, y रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन इज 2s to 1. Look at the formula of water. In one formula of water there are 2 hydrogen and 1 oxygen. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. So gas evolve after electrolysis having a ratio of hydrogen s to oxygen is 2s to 1. Now clear, students?
Okay, right. So now the decomposition topic is over here. Total 7 reactions we learn in the concept of decomposition. 4 reactions of thermal, 2 reactions of photo, and 1 reactions of electrolysis. क्या रिपीट करूं बेटा ये बताओ? ये देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या है कौशल? H2O बराबर है कौशल? हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही। तो जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी ना, तो हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होगा तो वो डबल होगा। हाइड्रोजन गैस जब बनेगा तो ये डबल होगा देन द ऑक्सीजन। आ रहा है समझ में? क्योंकि वन, हाँ क्योंकि वन से ये टू उसका डबल है, मतलब वन उसका हाफ है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस भी होगी ना और जब ये गैसेस बनेंगे तो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा ऑक्सीजन के प्रोडक्शन अमाउंट से। क्लियर हो गया कौशल? हाँ। सो यू हैव टू रिमेंबर द 7 एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर हो गया बेटा सबको? किसी को कोई डाउट है थर्मल डिकम्पोजिशन में? हाँ। अभी किसी के पास एनसीईआरटी बुक है? अभी आपके हाथ में एनसीईआरटी बुक है? हाँ तो कौशल, सेकंड या फर्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई थिंक फर्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन है, उसको फर्स्ट ब्लॉक को ओपन करो जहाँ पे ऐसे नीले नीले वर्ड में क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट ब्लॉक चेक करो जरा, उसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ उसका सेकंड क्वेश्चन रीड करो तो बेटा। हाँ ठीक है, वेट 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 वेट, सेकंड ब्लॉक पे जाओ। सेकंड ब्लॉक, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। यस। तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ये उसके ऊपर का क्वेश्चन है कि आपको जो एक्टिविटी नंबर वहां पे दिया है वो एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और वो पूछ रहे हैं कि इस एक्टिविटी में एक गैस जो प्रोड्यूस होता है ना, इट इज डबल देन द अदर। तो जो डबल है वो कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैस विच इज प्रोड्यूस इन डबल अमाउंट? यस, एंड अनदर इज ऑक्सीजन। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। So shall we move towards the next type of reaction, decomposition? Right. But the student number decrease हो रहा है यहाँ पे। कितने कितने मिनट्स बाकी? ओनली 4 मिनट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, सिर्फ 3 रिएक्शन बाकी है। तो ऐसा करते हैं, ये हम मंडे डिस्कस करते हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा फिजिक्स का होगा ना फ्राइडे, सैटरडे आपका फिजिक्स होगा। उसमें अभी थोड़े टेस्ट मैंने शेड्यूल किए हैं आपके। टेस्ट जो शेड्यूल की है उसमें एक जो है वो मल्टीपल चॉइस की है, एमसीक्यूज की, और सेकंड जो टेस्ट है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है। ये टेस्ट आपकी कब होगी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मल्टीपल चॉइस की जो है वो आपकी सैटरडे को होगी, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। टाइमिंग हमारे क्लास का जो रहेगा वो नहीं रहेगा इसका, क्योंकि आप फिजिक्स अटेंड करते रहोगे, तो इसका टाइमिंग मैं चेंज करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी क्या टाइमिंग रहेगा, आपके अदर क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगे। सब्जेक्टिव का भी सेम टाइमिंग रहेगा, संडे के दिन, ये संडे रहेगा। ये जो टेस्ट होगी ये चैप्टर 1 पर है। कहाँ तक? फ्रॉम स्टार्टिंग टिल डिकम्पोजिशन, अब तक हमने जो भी पढ़ा है वहां तक। क्लियर हो गया? एमसीक्यूज 20 मार्क्स।
and subjective also 20 marks. Is this clear? Okay. Start your preparation for chapter 1 and get ready for these two exams. Okay? Okay. Chalo then, bye bye. Take care.